हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके नवंबर 18 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका अनसीन पैसेज है, राइट? Read the given passage carefully to answer the following questions. Each question will have 5 alternatives as its answer. Choose the correct option as your answer. Okay. In the stillness of the late hours, there was a scientist. अच्छा wait, एक काम करते हैं, पैसेज पढ़ने के पहले एक बार जल्दी से हमारे जो क्वेश्चंस हैं पैसेज से रिलेटेड उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है? First question is, which of the following word is a synonym for project as used in the passage? Okay. How did the young boy perceive the scientist's nightly activities? Okay. यानी कि जो यंग बॉय था उसको साइंटिस्ट के जो रात में होने वाले एक्टिविटीज थे उसको वो कैसे लगते थे, कैसे वो उसे परसीव करता था? Which of the following is true according to the passage? Okay. What were the effects of the scientist's work on the town's inhabitants? Basically पूछा जा रहा है कि साइंटिस्ट के काम का क्या असर था उस टाउन में रहने वालों पर, ठीक है? How did the community react to the constant disruption caused by the scientist? तो कम्युनिटी का क्या रिएक्शन था साइंटिस्ट के इतने सारे डिसरप्शंस के वजह से, है ना? साइंटिस्ट की वजह से कुछ डिसरप्शन हो रहे थे, कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे जिसकी वजह से कम्युनिटी का कोई रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन था ये पूछा जा रहा है। Why did the boy assist the scientist despite the town's disapproval? वो जो बॉय था उसने साइंटिस्ट की मदद क्यों की, उसको असिस्ट क्यों किया, इवन दो जो टाउन था वो उसे डिसअप्रूव करता था, नापसंद करता था, उसे अप्रूव नहीं करता था, है ना? Which of the following is false? Okay. Synonym for reservation as used in the passage. Okay. ठीक है, यहाँ पे आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलो, let's read the passage now. In the stillness of the late hours, there was a scientist hard at work. His grand project considered a machine with the potential to navigate through time. These experiments drowned the serenity of the night with a symphony of sounds and flickering lights. Basically ये कहा जा रहा है कि जो साइंटिस्ट है उसके काम के वजह से जो शांत रातें होती थी वो अब क्या हो गई हैं, काफी उनमें साउंड्स हो गया है, सिम्फनी ऑफ साउंड्स है, फ्लिकरिंग लाइट्स है, लाइट जल रही है, ऑन ऑफ हो रही है, फ्लिकर कर रही है, ठीक है? सच एक्टिविटीज required a substantial amount of electrical power which often led to interruption in the town's power supply. The peaceful environment in the town started to feel more like a scene from a dramatic science fiction novel. तो बेसिकली काफी जो टाउन के पावर सप्लाई में इंटरप्शंस होने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगे, और जो शांत सा एक गांव था, आपका टाउन था, जो पीसफुल टाउन था बिल्कुल, वो एक कैसा लगने लगा, एक ड्रामेटिक साइंस फिक्शन नॉवल के जैसा दिखने लगा, प्रतीत होने लगा। ऑलराइट, नाउ the neighbors began to voice their worries and the general unease started to grow. Neighbors ने क्या किया, वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करने लगे, ठीक है? और जो जनरल अनईज था, जो दिक्कतें हो रही थी, वो बढ़ती चली गई। The otherwise quiet townsfolk found themselves caught up in these nightly disturbances. The strange sound and flickering lights disturbed their sleep, and the occasional power cuts caused frustration and disruption, ठीक है, to their daily lives. Where once they felt a sense of community and calm, they now felt stress and concern. जहां पे उन्हें पहले कम्युनिटी का सेंस फील होता था, एक शांत काम सेंस होता था, अब स्ट्रेस है और काफी ज्यादा कंसर्न है, चिंता है। The growing reservation about these nightly happenings. Reservation का मतलब क्या है यहाँ पे?
हमने देखा है आज आगे रिजर्वेशन का क्या सिनोनिम पूछा गया है ना। रिजर्वेशन यानी कि यहाँ पे क्या है, डाउट, शंका, चिंता, ठीक है। Their growing reservation about these nightly happenings led them to a significant decision. With one unified voice, they pleaded with the scientists to leave their town. A tough decision, but one they thought necessary for the greater good of their community. ठीक है? However, there was one individual young boy who did not share in the town's concern and agitation. This boy was different. He saw the nightly activities. One second. He saw the nightly activities not as a disturbance, but as an opportunity. An opportunity presented by science that could redefine the future. He was fascinated by the scientist's work. The curiosity in him, no, one second. He was fascinated by the scientist's work. The curiosity in him, one second. The strange sounds, sorry, he was fascinated by the scientist's work. The strange sounds and lights that bothered the rest of the town lit a spark of curiosity in him. So basically, जो साउंड्स थे और जो लाइट्स थे जो टाउन को परेशान कर रहे थे, वही लाइट्स और वही साउंड्स इसके अंदर क्यूरियोसिटी, जानने की जिज्ञासा लेके आ जाते हैं, ठीक है। His belief in the power of science was too strong to be swayed by the town's disapproval. Against the backdrop of the discontented townspeople, this boy extended his helping hand to the scientist. He spent his nights assisting in the experiments, learning fascinating new things every day. He admired the scientist's dedication to his project, and a bond of mutual respect and shared interest grew between them. Despite the town's growing reservation and pushback against the scientist and his experiments, the boy remained steadfast, absolutely sure of the importance of the work they were doing. Okay? His support offered a beacon of hope. His support offered a beacon of hope for the scientist. Beacon of hope मतलब आशा की एक किरण है ना? For the scientist who was unwavering in his efforts to bring his ambitious project to life, है ना? चलिए, let's come to our question. Which of the following word is a synonym for project as used in the passage? Trait, indolence, effort, venture या फिर operation? क्या है यहाँ पे बताइए? Which of the following word is a synonym for project? Project यहाँ पे प्रोजेक्ट का सिमिलर मीनिंग चूज करना है आपको. ट्रेट, इंडोलेंस, एफर्ट, वेंचर, ऑपरेशन, क्या है यहाँ पे? जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहा था? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, है ना, एक वेंचर पे काम कर रहा था. यहाँ पे सही आंसर आपका वेंचर हो जाता है. ठीक है. नाउ हाउ डिड द यंग बॉय परसीव द साइंटिस्ट नाइटली एक्टिविटीज? हमने देखा है ये एक्सक्यूज मी. ऑप्शंस हैं आपके. एज अ डिस्टर्बेंस, क्या वो उसे डिस्टर्बेंस लग रहे थे? नहीं. एज अ क्राइम? नो. एज एन अपॉर्चुनिटी? यस, है ना. द यंग बॉय परसीव द साइंटिस्ट नाइटली एक्टिविटीज. हाउ डिड ही परसीव देम? आई थिंक आई हैव अंडरलाइंड इट समवेयर. हाँ, सी, this boy was different. He saw the nightly activities not as a disturbance but as an opportunity. ठीक है. चलो, let's come to the next question. Which of the following is true according to the passage? The townsfolk largely welcomed the scientist's experiments. Welcome तो नहीं किया उन्होंने. The young boy found the scientist's late night activities disruptive to his sleep. नहीं.
डिसरप्टिव तो उसे बिल्कुल नहीं लगे, उसको तो क्यूरियोसिटी जाग रही थी, राइट? द टाउन्सफोक रिक्वेस्टेड द साइंटिस्ट टू लीव द टाउन ड्यू टू हिज डिसरप्टिव एक्टिविटीज. हाँ. हम्म. सी, with one unified voice, they pleaded with the scientists to leave their town, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि आप प्लीज टाउन छोड़ के चले जाइए. यहाँ पे क्या है? The townsfolk requested the scientist to leave the town due to his disruptive activities. So this is your right answer, option number 3. ठीक है? Scientist was unwelcome in the town from the very beginning. शुरुआत से तो unwelcome नहीं किया गया था उसे. The power supply of the town improved. Improve तो नहीं हुई, खराब ही हुई थी power supply. Disrupt हो गई थी, right? What were the effects of the scientists' work on the town's inhabitants? Scientist के काम का क्या असर पड़ा उन लोगों पे जो टाउन को इनहेबिट करते थे, टाउन के अंदर रहते थे? ऑप्शंस है. दे बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस, वो साइंस में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, बिल्कुल नहीं. इट स्पार्क्ड क्यूरियोसिटी एंड लेड टू इंक्रीज लर्निंग इन द कम्युनिटी, नहीं. इट ओनली स्पार्क क्यूरियोसिटी इन द यंग बॉय, बाकी किसी में क्यूरियोसिटी नहीं जागी, बाकी सब लोग इसे नापसंद कर रहे थे, राइट? दे वर डिस्टर्ब्ड. दे एक्सपीरियंस्ड डिसरप्शंस एंड इनकन्वीनियंस इन देयर डेली लाइव्स. ये बिल्कुल ठीक है, पावर सप्लाई कट हो जा रही थी उनकी, लाइट जो रात का समय था वो काफी ज्यादा नॉइजी हो गया था, फ्लिकरिंग लाइट्स थी, है ना? led to an industrial revolution in the town, nahin, this is also wrong. They felt honored to host the scientist, nahin, wrong. So sahi answer है option number 3. ठीक है? चलिए. How did the community react to the constant disruptions caused by the scientist? How did the community react to the constant disruption caused by the scientist? They longed for a formal complaint. Sorry, they lodged a formal complaint. फॉर्मल कंप्लेन तो नहीं की, है ना? एफआईआर वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, पुलिस के पास नहीं गए, फॉर्मल कंप्लेन नहीं थी ये. दे रिक्वेस्टेड द साइंटिस्ट टू लीव द टाउन. हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप टाउन छोड़ के चले जाइए. दे प्लीडेड हिम. दे डिसाइडेड टू इग्नोर इट. नहीं, दे डिड नॉट. दे अरेंज्ड फॉर एन ऑल्टरनेट पावर सप्लाई. ये भी नहीं हुआ था. दे अपलॉडेड द साइंटिस्ट एफर्ट. नो. सही आंसर है ऑप्शन 2. रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि आप टाउन छोड़ के चले जाइए. Now, why did the boy assist the scientist despite the town's disapproval? Boy ने क्यों assist किया scientist को टाउन के disapproval के बावजूद? He wanted to learn about the experiments. He was related to the scientist. नहीं. He wanted to be popular. No. He was paid by the scientist. नहीं. Pay भी नहीं किया scientist ने उसे. He was forced. No. सही आंसर ऑप्शन 1. He was interested. He wanted to learn about the experiment, है ना? See, he was fascinated by the scientist's work. See, one, despite the town's, huh, the boy remained steadfast, absolutely sure of the importance of the work. His support. So he was supporting. He was very interested. He was very curious to learn. ठीक है? चलिए. Let's go on to the next question. Which of the following is false according to the passage? The young boy saw the scientist's activities as an opportunity to learn more about science. ये तो सही है. उसने उस यंग बॉय को क्या लगा, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो साइंस के बारे में और ज्यादा सीख सकता है, राइट? There was a consensus of opinion among all town residents against the scientist. Yes. सब लोगों के अंदर अलग अलग ओपिनियंस थे. दे वर ऑल अगेंस्ट द साइंटिस्ट. क्यों? क्योंकि उनको सफर करना पड़ रहा था, डिसरप्शंस हो रहे थे उनके डेली लाइफ में. ये भी सही है, फॉल्स तो है नहीं है. आपको क्या करना है? फॉल्स चूज करना है ना?
फॉल्स यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है। द साइंटिस्ट एंड द यंग बॉय फॉर्म्ड अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये यहाँ पे मेंशन था, दिस इज मेंशन समवेयर। a bond of mutual respect and shared interest grew between them, है ना। चलो the townsfolk found themselves caught up in the nightly disturbances caused by the scientist's work. Yes, this is also true कि उनको रात में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। The young boy was repelled by the scientist. ये आपका सही आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो यंग बॉय था वो रिपेल्ड नहीं था, उसे घृणा नहीं फील होती थी साइंटिस्ट की एक्टिविटीज से, है ना। उल्टा वो तो और ज्यादा आकर्षित था, वो और ज्यादा क्यूरियस फील करता था, राइट। चलिए, सो ऑप्शन 5 आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर reservation as used in the passage? reservation का मैंने मतलब आपको बताया था यहाँ पे डाउट, है ना, शंका जिसे हम कहते हैं। सस्पिशन, सस्पिशन का भी मतलब होता है कि आप कुछ क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं किसी पे, ठीक है। हेजिटेशन, हेजिटेट करना, थोड़ा सा कहते हैं ना कि किसी से कुछ बात आप करने जाइए तो थोड़ा सा काफी लोग हेसिटेट करते हैं, है ना, हिचकिचाते हैं। मिसगिविंग, मिसगिविंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके आपके अंदर क्या होती है, थोड़ा आप डाउट फील करते हैं, थोड़ी शंका होती है आप में, ठीक है। अनसर्टेनिटी, आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं है। रिलक्टेंस, आप कोई चीज करने में क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, रिलक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है, सस्पेशन जो है ना, ये थोड़ा और ज्यादा क्या कह सकते हैं कि और ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। सस्पेशन मतलब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप शक कर रहे हैं किसी चीज पे। ये है मिसगिविंग, क्या है, डाउट, शंका। और रिजर्वेशन का भी मतलब है कि उनको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, कुछ शंका हो रही थी, ठीक है। शक नहीं कर रहे थे वो फुल फ्लेजेड। सो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, ठीक है। In the question, 6 sentences A, B, C, D, E, and F are given. Rearrange these given sentences in a particular sequence to form a meaningful paragraph and answer the questions given. आपको क्या करना है, एक जम्बल्ड पैराग्राफ है उसको आपको सीक्वेंस में रखना है ना। आपको कितने 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। चलिए, ए, we should extend our visit, father, the young girl insisted, completely enchanted by the rustic charm of the village. Her father, who had originally planned a brief visit, okay, it had all started when her father mentioned, okay, he agreed, he agreed and they embarked on the village journey together, okay. Much to her father's surprise, she fell in love with the village at first glance, okay. Posing a gentle smile, the father promised his persistent daughter that they would revisit. Okay. Question repeat लेते हैं फिर कैसे? अच्छा, which of the following is the first sentence in the arrangement? ठीक है, इस अरेंजमेंट में कौन सा सेंटेंस है जो सबसे पहले आएगा? चलिए, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? तो अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम यहाँ से करेंगे, राइट। इट हैड ऑल स्टार्टेड, इस चीज की शुरुआत तब हुई जब उसके फादर ने मेंशन किया कि वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं एक विलेज में, इन्वोकिंग इन हिज डॉटर एन एंथुजियास्टिक विश टू अकम्पनी हिम, जिसकी वजह से उनकी डॉटर के अंदर एक विश इन्वोक हुई, ठीक है। शी वांटेड टू गो विथ हिम, शी वांटेड टू अकम्पनी हिम, है ना। तो आई थिंक ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। सो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है।
क्योंकि बाकी आप देखिए, बाकी आपके फर्स्ट में बैठ नहीं रहे हैं, कंटेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा अगर किसी और को भी आप सबसे ऊपर रखते हैं तो। ठीक है ना। हम्म। सेकेंड सेंटेंस क्या है, पहले को हमने रखा सी, ऐसे करके हम यहीं पे सिक्स, जो आपके छह के छह सेंटेंसेस हैं उनका सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। It had all started when her father mentioned that he was undertaking a trip to the village, invoking in his daughter an enthusiastic wish to accompany him. Okay. इसके बाद, posing a gentle smile, her father promised persistent daughter, ये तो नहीं है. Much to her father's surprise, she fell in no. हाँ, he agreed. She wanted to accompany him. He agreed and they embarked on their village journey. तो वो अग्री कर गए उसके फादर, और वो एक विलेज की जर्नी पे चले गए टुगेदर, एक दूसरे के साथ अब उस विलेज की जर्नी पे चले गए, नॉट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन द लिटिल गर्ल। और उन दोनों ने ये नहीं रियलाइज किया कि उस जर्नी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस छोटी सी बच्ची पे, ऑन दैट लिटिल गर्ल। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस नंबर 2 हो गया, सी डी। हाँ, सेकंड आपका ये डी है। थर्ड सेंटेंस अब आपको चूज करना है। हम्म। Her father, who had originally planned a brief visit, found himself flying Euphemia. Much to her father's surprise, she fell in love with the village at first sight. हाँ, तो वो चले गए, and much to her father's surprise, she fell in love with the village at the first glance and expressed a desire to spend more time there. ठीक है, आई थिंक ये आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। Her father, who had originally planned a brief visit, found himself trying to convince his daughter. Hmm. We should extend our visit, father. Okay, तो first she will ask him कि हमें अपना visit extend कर लेना चाहिए, और and then he was trying to convince his daughter that it is time to return. है ना, वो convince कर रहे थे कि अब घर जाने का समय हो गया है। So ये आपका पहला सेंटेंस है, ऑप्शन सी। डी आपका सेकंड सेंटेंस हो गया, ई आपका थर्ड सेंटेंस हो गया, एंड ए आपका फोर्थ सेंटेंस है। फिफ्थ इज, हाँ, एक सेकंड, लेट मी रीड इट फर्स्ट। हाँ, it had all started when her father mentioned that he was undertaking a trip to the village, invoking in his daughter an enthusiastic wish to accompany him. He agreed and they embarked on the village journey together, not realizing the impact it would have on the little girl. Much to her father's surprise, she fell in love with the village at first glance and expressed a desire to spend more time there. We should extend our visit, father, the young girl insisted, completely enchanted by the rustic charm of the village. Her father, who had originally planned, हाँ, this is correct, ये sequence सही जा रहा है। So her father, who had originally planned a brief visit, found himself trying to convince his daughter that it was time to return home. Posing a gentle smile, हाँ, posing a gentle smile, the father promised his persistent daughter that they would revisit the village, thus finally persuading her to head home. यहाँ finally बात हो रही है ना, लास्ट में हम कहते हैं finally ये चीज हो गई, the story ends. ठीक है, तो ये आपका सिक्स्थ सेंटेंस है। चलो, थर्ड आपका कौन सा हुआ? थर्ड सेंटेंस जो था वो था आपका ई। फोर्थ वाज ए। हाँ, आई थिंक फोर्थ वाज ए।
फिफ्थ बी था आपका। इसमें बी ही नहीं है। वन सेकेंड। फोर्थ के बाद फिफ्थ का ऑप्शन नहीं है, राइट? ठीक है, फिफ्थ वाज बी। फिफ्थ सेंटेंस जो था वो आपका बी था। सिक्स्थ जो था वो एफ था, लास्ट, है ना? हम्म। ठीक है, चलो। In the following sentence, five words are given in bold, out of which one word is misspelled. Find the misspelled word. तो ये कुछ वर्ड्स है जो बोल्ड में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बोल्ड में नहीं है, यहाँ पे ये अंडरलाइन है, ठीक है? इसमें से एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, एंड यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है? बाय कैंसलिंग। कैंसलिंग की स्पेलिंग ठीक है। ऑल visas that had been issued, correct, earlier to the Afghan cities, including government officials, journalists. ठीक है, this is also correct. And other frequent visitors, India has returned. India has turned friends into unwanted entrants. माइनर माइनर मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है? ऑप्शन ई आपका राइट आंसर है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो, डिस्पाइट द कंप्लीशन। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, बोल्ड नहीं है, पूरा सेंटेंस बोल्ड है यहाँ पे। और ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपके बोल्ड नहीं है, जिनको आपको स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है? थोड़ा सा टाइपिंग में इशू है, दैट इज वाई यहाँ पे ये एरर है। एग्जामिनेशन हॉल में आप देखेंगे कि बाकी पूरा सेंटेंस नॉर्मल बॉडी में लिखा है। आपका जो यहाँ पे जो ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपके बोल्ड होंगे, ठीक है? डिस्पाइट द कंप्लीशन, completion, okay, correct, of the delimitation। delimitation की स्पेलिंग गलत है, delimitation। one second। सो ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है, राइट? डिस्पाइट कंप्लीशन। अच्छा नहीं, P is for unannounced, D is for exercise, C is for delimitation, D is for completion, A is for despite। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। delimitation की स्पेलिंग गलत है आपकी, ठीक है? द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल। इलीगल ठीक है। माइनिंग ऑफ minor minerals is underestimated, thus accentuating undesired environmental consequences। ये जो वर्ड्स हैं आपके अंडरलाइन, जो मैंने अभी अंडरलाइन किए, उनकी स्पेलिंग आपको चेक करनी है, ठीक है? इलीगल की स्पेलिंग ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस भी ठीक है, इन्वायरमेंटल भी ठीक है, अनडिजायर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। एक्सेंचुएटिंग की स्पेलिंग आप देखिए, बहुत ही माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स दी हुई हैं। अगर आप ध्यान से पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो यू माइट मिस इट, राइट? इतना माइनर यहाँ पे है ना, ठीक है? एक्सेंचुएटिंग, हाँ। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देयर इज अ स्पेलिंग एरर, बहुत ही माइनर स्पेलिंग
मिस्टेक्स दी हुई हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while you're appearing, है ना? The likelihood that many would have faced long incarceration as PMLA accused, even though eventually found innocent, has just increased manifold. Okay. The likelihood you have turned behind here that many would face long incarceration as PMLA accused, even though eventually found innocent, has just increased manifold. ठीक है, अंडरलाइन वर्ड जो है उसके स्पेलिंग्स आपको चेक करने हैं. लाइवलीहुड की स्पेलिंग ठीक है, इनकार्सरेशन ये भी करेक्ट है, इवेंचुअली भी सही है, अक्यूज्ड भी सही है. हाँ, सी एक ही वर्ड है यहाँ पे जो इन्होंने चेंज किया है, राइट? इट्स इनोसेंट. ठीक है, तो ऑप्शन ई में एरर है, ऑप्शन 5 आपका सही आंसर है. ठीक है, चलो. With a depreciating currency, with a depreciating currency and rising inflation, prospects of sustaining investment recovery are likely to get harder. एरर कहाँ पे है? करेंसी की स्पेलिंग ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स ये भी ठीक है, सस्टेनिंग इज ऑल्सो करेक्ट, इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग भी ठीक है. यहाँ देखिए, मिसिंग क्या है? ई मिसिंग है यहाँ पे. ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं ये. ठीक है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो टू फाइंड आउट इफ it contains an error. The result was the best who could be expected under the circumstances. सही ऑप्शन क्या है? एरर कहाँ पे है? या फिर इज देयर नो एरर? जल्दी, व्हाट डू यू थिंक? द रिजल्ट वाज द बेस्ट हु तो नहीं होगा यहाँ पे, हम लिखेंगे द रिजल्ट वाज द बेस्ट दैट कुड बी एक्सपेक्टेड, है ना? तो ऑप्शन बी में आपका एरर है, दिस इज योर राइट आंसर. चलो, पीपल प्रेफर गेम्स than story books. Very common. I like this than this. नहीं, that is wrong. People prefer mobile games to. To लिखेंगे हम यहाँ पे, not than. People prefer mobile games to story books. सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी. ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. चलो. Now, one of the aim of ethnography is to contribute an understanding of the human race. One of the aim of ethnography is to contribute an understanding of the. एक error तो आप यहाँ पे देखिए, one of the aim नहीं होगा, one of the aims होगा. ठीक है, one of the aims of ethnography. And I think there's an error. इस क्वेश्चन में कुछ एरर हुई है. I'll just cross check and come back. 1 second. राइट. तो यहाँ पे आप देखिए दो एरर हैं.
है ना, आई कुड डिटेक्ट 2 एरर्स। और यहाँ पे हमें ऑप्शन में तो 2 ऑप्शंस नहीं दिए हैं, राइट, बट इस सेंटेंस में यहाँ पे 2 एरर हैं। एक तो ये वन ऑफ द एम्स होगा, वन ऑफ द एम नहीं होगा। तो एक तो आपका ए में प्रॉब्लम है, तो ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। फिर टू कंट्रीब्यूट टू होगा, है ना, टू कंट्रीब्यूट एंड अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं है, टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पे सी में भी एरर है। तो ये दोनों आंसर्स आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों आंसर्स आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर होने की वजह से ये टू मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपका ये टू प्रेजेंट है। तो सही आंसर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। आफ्टर प्लांटिंग द टाइम बॉम्ब, the terrorists quickly left the building, bag and baggage. After planting the time bomb, the terrorists quickly left the building, bag and baggage. What do you think? Is there any error? After planting the time bomb, the terrorists quickly left the building. No error. No error. ठीक है? Next question. And university awards academic degrees in various academic disciplines. Okay. And university awards. बहुत कॉमन एरर है यहाँ पे। आर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ा है कि वावल के साथ हम एंड लगाते हैं, बट साउंड क्या आ रही है यहाँ पे उस पर भी डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी बोलते वक्त यू की साउंड आती है एंड दिस इज नॉट अ वावल साउंड, तो यहाँ पे हम अ लगाएंगे, ठीक है, तो अ यूनिवर्सिटी होगा, नॉट एन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन है आपका सही, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ए में एरर है। नाउ दिस ईयर आवर एनुअल सैलरी dash doesn't match the rate of inflation. Options: increment, abased, modify, adamant, indelible. सही आंसर क्या है? This year our annual salary dash doesn't match the rate of inflation. Increment, abased, modify, adamant, indelible. तो सैलरी जो आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं, राइट, वी कॉल इट इंक्रीमेंट, है ना। इंडेलिबल का मतलब होता है परमानेंट, एडमेंट का मतलब होता है वेरी स्टबर्न, जिद्दी, ठीक है। मोटिफाई का मतलब होता है किसी को एम्बैरेस करना, ना। अबेज का क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में बताना कि अबेस्ड को हम क्या कह सकते हैं, अबेस्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। A peace negotiation has been in dash for the last 25 years and the hope is that this would culminate in a lasting settlement. Options हैं आपके: progress, congress, distress, regress, suppress. Peace negotiation has been in what? Ongoing है, right? Has been in dash for the last 25 years. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोग्रेस होगा, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस हम सुनते हैं। सो पीस नेगोशिएशन हैज बीन इन प्रोग्रेस, व्हाई? बिकॉज दिस मीन्स इट्स बीन ऑनगोइंग, है ना, फॉर द लास्ट 25 years in the hope that this would culminate in a lasting settlement. कांग्रेस क्या है? इट्स एन असेंबली। डिस्ट्रेस, व्हाट डज दिस मीन? डिस्ट्रेस मतलब सफरिंग, प्रॉब्लम्स। रिग्रेस मतलब कोई चीज रिग्रेस हो रही है, पीछे जा रही है। कहते हैं ना कि हम, कुछ लोग होते हैं जो आगे ना बढ़कर वो लाइफ में पीछे जाते हैं, रिग्रेस करते हैं, तो गो बैकवर्ड्स, है ना। सप्रेस का मतलब दबाना,
है ना, सप्रेस करना, खुद को दबाना, खुद को लिमिट करना, कंट्रोल करना। किसी भी चीज को आप सप्रेस करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं, है ना। चलो, this year's super hot summer should be a dash, even if we have not yet learned from earlier events of extreme temperatures, erratic rainfall, cloudbursts, and cyclones. Very true. ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। एंटरटेनिंग, कैनिंग, वार्निंग, बैनिंग, अर्निंग। सही आंसर क्या है? कहा जा रहा है कि ये जो सुपर हॉट, बहुत ही ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है, इट शुड बी अ डैश, इवन इफ, तब भी जब हमने नहीं सीखा जो पुराने इवेंट्स हुए थे, जो इतना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर था, टेम्परेचर जो इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो गए, इर्रेटिक रेनफॉल जो थी, बिल्कुल ही समझिए इर्रेटिक थी, इरेग्युलर थी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट हुए, साइक्लोन्स थे, इन सब चीजों से भी हमने नहीं सीखा, है ना। व्हाट आर, सही आंसर क्या है आपका? एंटरटेनिंग, कैनिंग, वार्निंग, बैनिंग, या फिर अर्निंग। तो वार्निंग होगा, राइट। यहाँ पे वार्निंग का सेंस आ रहा है कि ये जो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, इसको हमें एज अ वार्निंग लेना चाहिए। इट शुड बी अ वार्निंग। Even if we have not yet learned from the earlier events, because of climate change, because of so many things, अभी आप भी देख रहे होंगे कि जो आपका क्लाइमेट है ना, वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहा है। सर्दी के टाइम पे गर्मी होती है, बारिश होती है। गर्मी के टाइम पे आपको अचानक से कभी ठंड होने लगती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। मॉनसून के मौसम में बारिश नहीं होती। द वेदर हैज बीन वेरी erratic, right? So we should take it as a warning. Entertaining मतलब हम सबको पता है, मनोरंजक, है ना, मनोरंजन, सॉरी। कैनिंग क्या होता है? केन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है छड़ी, जिस छड़ी से हम क्या करते हैं, पिटाई करते हैं, है ना, छड़ी। अब कैनिंग को क्या हो गया? कैनिंग का मतलब हो गया एक पनिशमेंट। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू हिट समबडी, सेंस आप वहां से लगा सकते हैं। कैनिंग का मतलब हो गया पनिशमेंट या फिर बीटिंग। पनिशमेंट या फिर बीटिंग, मारना किसी को, पनिशमेंट देना। केन क्या है? छड़ी है, ठीक है। तो इस चीज से आप रिलेट कर लीजिए इसको। बैनिंग, किसी चीज को बैन कर देना। अर्निंग यानी कि कमाना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Socialism is a political dash that continues to cause much ideological and political confusion in India. Socialism is a political dash. Options हैं आपके: legacy, estate, device, capital and fortune. Fortune का मतलब क्या होता है? luck, ठीक है। Capital का मतलब क्या होता है? wealth, आपके पास कितना पैसा है। Device, डिवाइस का मतलब क्या होता है? कोई भी डिवाइस के बारे में या तो हम बात कर सकते हैं या टूल कह सकते हैं, है ना। एस्टेट, एस्टेट प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसे हम एस्टेट कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी। लेगेसी क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जो सदियों से चली आ रही है ना, इट्स बिन ऑनगोइंग, पास्ट से चली आ रही है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, वेल्थ होगा नहीं, लक नहीं होगा, डिवाइस भी नहीं होगा। सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल व्हाट? लेगेसी। Socialism is a political legacy that continues to cause much ideological and political confusion in India. ठीक है? Enforcement agencies must be allowed to use scientific methods to dash and detect crime. Options हैं: advent, fervent, prevent, repent या फिर invent. क्या है यहाँ पे? Enforcement agencies must be allowed to use scientific methods
to dash and detect crime, must be allowed to use scientific methods to prevent, है ना, उसे रोकना, होने से रोकना, प्रिवेंट करना एंड डिटेक्ट करना क्राइम को, ठीक है। एडवेंट का मतलब क्या होता है? अराइवल, किसी चीज का अराइवल। फर्वेंट मतलब वेरी पैशनेट, ठीक है, किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा फर्वेंट है, पैशनेट है। रिपेंट का मतलब क्या होता है? रिपेंट का मतलब होता है जब आप क्या रिग्रेट करते हैं किसी चीज को, ठीक है। इन्वेंट का मतलब आविष्कार, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रिवेंट। Rearrange the words if required. After our troops left the war-torn country, ये underlined part है, war-torn country restored occurred when the citizens regression to their unstable form of government, ठीक है। ये underlined जो words हैं उनको आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है अगर ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। आफ्टर आवर ट्रूप्स लेफ्ट द वॉर टॉर्न कंट्री रिस्टोर्ड अकर्ड, लेफ्ट द वॉर टॉर्न कंट्री, रिग्रेशन अकर्ड होना चाहिए, राइट। रिग्रेशन हुआ व्हेन द सिटीजन रिस्टोर्ड टू देयर अनस्टेबल, मतलब रिग्रेशन हुआ जब सिटीजन वापस रिस्टोर हुए, वापस आए अपने अनस्टेबल कंडीशंस में, अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है? बी जो है वो सी से रीअरेंज होगा, ये हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे इसे, तो यहाँ सी होगा और यहाँ पे बी होगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। आफ्टर आवर ट्रूप्स लेफ्ट द वॉर टॉर्न कंट्री, रिग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज होगा, रिग्रेशन अकर्ड व्हेन द सिटीजंस रिस्टोर्ड to their unstable form of government. Okay, correct. So let's come to the next question. Choose the pairs of words to interchange. Following the attendance, ये underline आपके words हैं, following attendance, contact requiring increased pandemic, per week gradually, present that. ठीक है। ये underline जो words हैं इनको आपको interchange करना है if it is required. Following the attendance, the fine tech firm requiring, following the attendance, following the attendance नहीं होगा यहाँ पे, हम लिखेंगे following the pandemic, increased office attendance, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे फॉलोइंग दी अटेंडेंस तो कुछ नहीं होता, फॉलोइंग दी पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद है ना, फॉलोइंग दी पैंडेमिक, तो यहाँ पैंडेमिक होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इंक्रीज्ड ऑफिस पैंडेमिक, ऑफिस पैंडेमिक नहीं, इंक्रीज्ड ऑफिस अटेंडेंस, सेंस बन रहा है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ए और सी को इंटरचेंज किया एक दूसरे से, ए और सी, सी और ए, देखो ये करेक्ट है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? फाइंड टेक फर्म रिक्वायरिंग इनिशियली नाउ ग्रेजुअली, इनिशियली टू नाउ ग्रेजुअली, following the attendance नहीं, following the pandemic the fine tech firm gradually increased office attendance, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? डी को बी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटरचेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो द फाइन टेक फर्म रिक्वायरिंग नहीं होगा, द फाइन टेक फर्म ग्रेजुअली इंक्रीज्ड ऑफिस अटेंडेंस, ठीक है। हाँ, क्या कहा जा रहा है? पैंडेमिक के बाद जो फर्म था, फाइनटेक जो फर्म था, वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपना ऑफिस का अटेंडेंस उसने इंक्रीज किया फ्रॉम 1 day per week इनिशियली, इनिशियली
हर हफ्ते एक दिन बुलाया जा रहा था, टू नाउ रिक्वायरिंग, क्यों? क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज किया है ना ग्रेजुअली से, तो रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू बी प्रेजेंट एट, ठीक है, तो डी और बी भी चेंज हो गए। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, विद दिस हमने सारे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमने सारे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है जो कि नवंबर 18 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। कमेंट्स में बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।